Alright, so up till now what we have done is we have had a good amount of experience of C programming, right? हम लोग loop सीखे, arrays सीखे. Yesterday we did functions, which is one of the most important programming concepts which you can learn. Okay. Today we are going to do some discussion on strings. So obviously जो picture दिखा रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है. It's just shown here. So before going into strings, let us have a slide on the character data type, char data type. So in C, characters are indicated by single quotes. We already saw in one of the programs where we use a character variable, if I am not wrong, in the switch case, right? So there we declared a char variable and we took the input and we used that. So there also we came to know that a char variable takes single quotes around it and इसमें सिर्फ एक ही character आ सकता है. So A or Z or any other special character like star or dollar or anything else. So in printf the descriptor which is used is %C. This is clear, right? This is everything which we have done already. So now what is a string? So a string is an array of characters. String कुछ भी अलग नहीं है. Like we have an array of integers, so string is an array of characters. When you will learn Java and other programming languages, वहाँ पे तुम देखोगे कि string actually एक अलग data type होता है. But in C and in C++ also there is a string data type. But in C you represent string as a character array only. तो इसमें कोई अलग से data type नहीं होता. It's just a collection of many characters, right? Now, of course, even if it's the array of characters, but you cannot use an assignment operator to assign a string. Like, जैसे हम लोग my char 4 equal to a कर सकते हैं, because my char is my array of 80 characters, right? So if I write my char 4 equal to a, तो क्या होगा? Fourth index में a character आ जाएगा. But I cannot assign a string in this format using equals to. Okay. So let's understand how to deal with it. So first let us understand what is the structure of a string. So obviously it will be जो array का structure है वही string का structure होगा, तो कोई difference आएगा नहीं. But there is a slight difference. A null character is placed to mark the end of each string. So if suppose ये एक string है, this is a string. So array में तो इस तरह से store होगा. And of course each space will also occupy one character, one memory space. ये space भी तो एक character है ना. But now after this string you can see a null character. So this is called a null character. So why do we give a null character? It indicates that this is a string. So what is the difference between a normal character array and a string? The only difference will be this null character. In a normal character array, I will have everything which is there, but वो null नहीं रहेगा. But if I give a null character at the end of a character array, that means it is a string. तो इसको हम लोग क्यों string बोल रहे हैं? Because there are some specific functions जो कि strings के ऊपर हम लोग कर सकते हैं. If this format is there, तो हम लोग उसके बारे में भी सीखेंगे. So string functions use null character to locate end of the string. Okay. So it is like a full stop in a sentence. ठीक है? So blank क्या indicate करता है सर? Blank तो blank character होता है ना, जैसे $, वैसे ही एक white space character होता है blank. तो वो भी एक legitimate character है. So that will also occupy a space or an element in the array. Okay. Now if I have a array, so this is also something which we have not discussed. एक तो तरीका था array में input लेने का via user inputs or via indexes. But if I know that what should be the elements in the array, तो मैं उसको इस तरह से भी define कर सकता हूँ. So char my str is the name of the array. I gave the length 5 और उसके बाद curly brackets के अंदर I specify the values also. कि ये value रहेगा उसमें. Clear? So now my str में A B C D और फिर ये slash है ना, ये slash
मिसिंग है, स्लैश होगा. सो दीज आर द 5 कैरेक्टर्स विच आई हैव एंटर्ड इन द एरे. एक चीज नोट करना, स्लैश जो नल कैरेक्टर है वो भी एक स्पेस, वो भी एक एलिमेंट है. So that will also take a space. So if your array is of length 10, so you can enter at max 9 characters, क्योंकि वो एक तो null character के लिए तुम्हें जगह रखना पड़ेगा. Okay? And printf में मैं क्या कर रहा हूँ, %s लगा रहा हूँ. So this %s becomes a descriptor for a string. और ये %s वो null character को ढूंढ के ही stop होगा. That is why this null character is very important, क्योंकि वो ही symbolize कर रहा है कि it is a string. A terminating null character at the end has to be there, and this will print my str is abcd. Print obviously abcd करेगा, वो null character को print नहीं करेगा वो. So that null character is just to indicate that okay, this is the end of the string. तो string abcd ही है. Okay? इसमें कोई डाउट है तो बोलो. सिंपल सा ही चीज है, ऑलमोस्ट एन एरे. इट इज एन एरे ओनली. सिर्फ हल्का सा उसमें लास्ट में एक मॉडिफिकेशन है, दैट्स इट. सो अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग अ स्ट्रिंग इज आई कैन डिक्लेयर अ कैर माई str. तो देखो इसमें क्या हुआ, देखो इसमें क्या हो रहा है, कैर माई str आई गेव अ लेंथ ऑफ 10. दैट मीन्स वो 10 एलिमेंट्स का एरे तो बनाएगा. एंड उसके बाद आई गेव बर्ड बाथ जो भी. तो बर्ड बाथ जो है दैट टेक्स हाउ मेनी एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स, और एक 9th रहेगा नल कैरेक्टर के लिए, और एक स्पेस मेरा खाली है, एक एलिमेंट मेरा खाली है. सो नाउ दिस इज ओके टू यूज असाइनमेंट ओनली टू इनिशियलाइज द स्ट्रिंग. मैं स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दिया हूं इस तरह से. तो नॉर्मल इंटीजर्स को मैं इस तरह से नहीं कर सकता, बट स्ट्रिंग्स को मैं कर सकता हूँ, कैरेक्टर एरेस को. So if I write char my str, तो इसमें क्या हो रहा है, null character is added automatically. प्रीवियस केस में क्या हुआ था, we explicitly, जैसे इस केस में क्या हुआ था, we explicitly specified a null character as an element of the array. But यहाँ पे I am providing the string एक साथ में bird bath. So this means that the null character is automatically appended or added at the last element और आफ्टर द स्ट्रिंग इज ओवर. सो बर्ड बात खत्म हुआ, उसके बाद एक नल कैरेक्टर ऐड कर दिया, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा इफ यू गिव दैट असाइनमेंट स्टेटमेंट. ओके, एंड इट विल ऑटोमेटिकली गेट कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रिंग. ठीक है. सो नाउ इफ यू अगेन प्रिंट यूजिंग %s, यू विल गेट द सेम आउटपुट. सर वो नल कैरेक्टर का क्या यूज है? नल कैरेक्टर का यूज है कि वो बस इंडिकेट कर रहा है कि ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग यहाँ खत्म हुआ है. अगर हम एक नॉर्मल कैरेक्टर एरे बनाएंगे तो उस केस में नल कैरेक्टर का जरूरत नहीं है, बट फिर वो उस पर हम लोग स्ट्रिंग का फंक्शंस नहीं यूज कर पाएंगे, वो फिर एक नॉर्मल कैरेक्टर एरे बन के रह जाएगा. माई str is of 10 characters, but only it uses the first 8 elements to store the word, and 9th element is used for the null character. अब ये एक बेटर तरीका है करने का. इसमें क्या हो रहा है, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. मैं 10 है कि 12 है कि 9 है, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग दैट. तो वो क्या होगा, स्पेस इज एलोकेटेड ऑटोमेटिकली टू होल्ड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी विच आई नीड. तो बर्ड बाथ जो आया, बर्ड बाथ के बाद नल कैरेक्टर आ गया. तो दिस मीन्स दैट आफ्टर स्टोरिंग द स्ट्रिंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग द नल कैरेक्टर, वो उतना ही तक एरे बनाएगा. तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग का साइज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है. तो ये चीज समझ में आया. इसमें मैं नहीं दिया हूं लेंथ, इसीलिए ऐसा हो रहा है. ओके. एंड अगेन प्रिंट तो सेम ही चीज होगा, प्रिंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट दिस इज अ बेटर वे. अब तुम 100 एलिमेंट का एरे बना लो, 10 ही एलिमेंट स्टोर करो, तो बाकी तो वेस्ट जा रहा है ना मेमोरी. So that is why this is a better way to do it. Clear? I think it is fairly simple. So now how to output or how to print the strings on the console. So I can use my printf statement as I have been using. So if I use percentage, so I have to use the descriptor %s and यहाँ पे कुछ भी मैं string array दूं तो वो print कर देगा.
राइट. यहाँ पे आई हैव जस्ट क्रिएटेड ABC123 a string in the array mystr. उसको प्रिंट कर देंगे परसेंटेज लगा के. क्लियर? पक्का? नाउ एंड ऑफ कोर्स कैरेक्टर, अगर कोई कैरेक्टर प्रिंट करना है उस स्ट्रिंग का तो नॉर्मल एरे की तरह ट्रीट होगा वो. तो इफ आई प्रिंट mystr1 तो क्या प्रिंट होगा? 1 इंडेक्स पे b है तो b विल गेट प्रिंटेड. ठीक है. So now let us understand how to take string input. तो सबसे पहले तो scanf को देखते हैं कि scanf के थ्रू कैसे इनपुट ले सकते हैं a string. So scanf reads up to the first white space. This is very important. scanf क्या करेगा? scanf सिर्फ पहला जो स्पेस या white space मिलता है वहीं तक रीड करेगा. Basically one word only. So it ignores the stuff typed in after that. So you have to be very careful when you are using scanf. तो जैसे इसमें क्या हो रहा है? printf enter a string. अब scanf में मैं दे दिया %s करके mystr. Now after that printf में मैं लिख रहा हूँ you entered %s of mystr. अब देखो इनपुट में मैं क्या दे रहा हूँ. If I am giving CSE 251, my output will only be CSE. Why? Because after scanf का क्या है? After reading this space वो और इनपुट नहीं रीड करेगा. तो ये सिर्फ CSE ही आउटपुट देगा. तो जनरली इसीलिए हम लोग scanf को नहीं यूज करते हैं स्ट्रिंग्स के चक्कर में, बिकॉज स्ट्रिंग्स में हम लोग जनरली सेंटेंसेस ही इनपुट लेते हैं. एक वर्ड लेने का इनपुट लेने का रिक्वायरमेंट होगा तब scanf यूज कर सकते हैं. बट इन अ सेंटेंस आई कैन डेफिनेटली नॉट यूज scanf, राइट. So this is just for your information, but generally we don't use scanf. अच्छा, एक ये फंक्शन होता है get char. Get char हम लोग यूज किए थे, I think in one place we used get char. So get char का काम क्या? It will just fetch one character from the input string. तो यूजर अगर एक इनपुट दे रहा है कुछ भी तो एक कैरेक्टर को ले ले. तो जैसे यहाँ पे एंटर अ कैरेक्टर किए, फिर माई कैर इक्वल टू गेट कैर कॉल करेंगे तो यूजर जो भी एंटर कर रहा है कीबोर्ड के थ्रू दैट विल गेट स्टोर्ड इनटू माई कैर. ठीक है. एंड तो इसमें भी अगर इफ यू एंटर THIS तो वो सिर्फ T को कैप्चर करेगा. सो द बेस्ट फंक्शन टू यूज टू टेक इनपुट अ स्ट्रिंग इज fgets. तो fgets क्या करता है? fgets फंक्शन fetches a whole line up to the size or limit or when it sees a new line. तो हम लोग fgets फंक्शन में लिमिट भी देते हैं कि इतना कैरेक्टर्स तक रीड करना है, जितना हम चाहते हैं उतना कैरेक्टर्स हम रीड करवा सकते हैं. तो या तो वो उतना कैरेक्टर्स तक रीड करेगा या फिर उसे जब एक न्यू लाइन मिल जाएगा, न्यू लाइन मतलब /n. सो व्हेन आई प्रेस एन एंटर की वो तब तक एंटर करवा पाएगा, राइट. सो of course it will also add a null at the end of the string automatically. वो यूजर को null enter नहीं करना पड़ेगा. when you are entering the string you don't have to enter a null. वो अपने आप null enter करवा लेगा fgets function. Okay. And how to use that? तो fgets is a function. fgets के अंदर में I will pass the array, then I will pass the length कि कितना characters तक read होना चाहिए, and then I will give stdin. So what is the meaning of stdin? stdin means standard input console. So stdin देने से इसका मतलब हो गया कि हम जो input दे रहे हैं कंसोल में वहां से वो रीड करेगा. So there can be other sources also, like we can use files to read strings. तो अगर हम लोग फाइल्स यूज कर रहे हैं कि फाइल में से कोई स्ट्रिंग को रीड करना है तो यहाँ पे stdin नहीं होगा, यहाँ पे फिर एक फाइल पॉइंटर होगा जिसके बारे में मैं बताऊंगा लेटर ऑन. सो अभी के लिए stdin मीन्स इट रेफर्स टू द स्टैंडर्ड जो आउटपुट का कंसोल है उसको रेफर कर रहा है. वहां से इनपुट जो भी आएगा उसको रीड करेगा, बेसिकली कीबोर्ड इनपुट, नथिंग एल्स. एंड इट रिटर्न्स अ नल इफ समथिंग वेंट रॉन्ग. अगर रीड ठीक से नहीं हो पाया तो नल रिटर्न करता है, एंड अदरवाइज इट विल रिटर्न अ पॉइंटर टू द एरे. अभी के लिए ये स्टेटमेंट पॉइंटर टू द एरे को इग्नोर मारो बिकॉज वी हैव नॉट लर्न पॉइंटर येट. तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. ओके. नाउ the functions that start with f work with any source of input, as I already told you. So it may work with files also, it may work with standard console also.
तो stdin लगाने से it works for standard console, standard input. ठीक है, this is clear. And console what is input? Console means your standard keyboard input. जो ब्लैक स्क्रीन आता है और उसमें हम लोग इनपुट देते हैं ना, दैट. अच्छा, नाउ दिस इज वन एग्जांपल प्रोग्राम. हियर वी आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन fgets एंड scanf. तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं. str1 और str2 दो स्ट्रिंग है 20 कैरेक्टर्स का. पहला मैं बोल रहा हूँ एंटर अ स्ट्रिंग और उसको fgets के थ्रू इनपुट ले रहा हूँ. ठीक है, सो एंड सेकेंड स्ट्रिंग को scanf के थ्रू एंटर ले रहा हूँ. So let us see what is happening. So if I enter, this is a string. तो पहला वाला हम लोग fgets के थ्रू रीड किए थे, राइट. सो fgets के थ्रू अगर रीड करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज रीड होगा. ऑल्सो अब हम लोग दिस इज अ स्ट्रिंग लिखने के बाद एंटर की प्रेस किए थे, राइट. सो दैट एंटर की इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द fgets. दैट एंटर की इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द fgets. और फिर नल कैरेक्टर तो ऐड होगा ही होगा. और scanf में क्या होगा, वो दिस के बाद रुक जाएगा, बिकॉज scanf का काम क्या है, वो पहला व्हाइट स्पेस मिलते ही वो इनपुट रीड करना बंद कर देगा. सो नाउ व्हाट विल हैपन इज, वो स्लैश वो नल लगा दिया पर दिस तक ही स्टोर हो पाया. सो इफ आई प्रिंट द आउटपुट इट विल ओनली प्रिंट यू एंटर्ड दिस. तो समझ में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन fgets एंड scanf. ओके, Okay, so these are some string manipulation functions which we will be using. पर पहले एक काम करते हैं, let's have a basic practice of taking input a string and printing it. So what we are aiming to do is we are just aiming to take an input from a user. एक string input लेना है user से and उसको print कर देंगे output में. So okay, so my str is the string, right. Now let's give the user a prompt कि भाई enter करना है. Enter the string. stdin मैं बोला ना वो कीबोर्ड इनपुट को ट्रैक करेगा, तो इसीलिए stdin लगाए हैं. लेट्स रन दिस वंस एक बार. So this is coming as the output. Clear? There is another function called fputs. जैसे fgets है to take input. There is one function called fputs to print it on the output screen. तो वो भी हम लोग कर सकते हैं. But printf में भी printing हो जाता है. Let's try using fputs also once. So fputs में I'll print my str and यहाँ std out देंगे because it is standard output. Let's try and run it. Right? So fputs और printf में as such कुछ भी डिफरेंस नहीं है. fputs तुम फाइल में भी यूज कर सकते हो राइट करने के लिए. जैसे यहाँ पे std out की जगह इफ यू गिव अ फाइल पॉइंटर तो वो उस फाइल में भी राइट कर देगा. सो यू कैन यूज fputs ऑल्सो. देयर इज नो डिफरेंस एज सच. ठीक है, इट डिपेंड्स तुम्हारा जैसा रिक्वायरमेंट है.
30 was to specify कितना characters read करना है. Like if I give a 10 here, so let's try to see what the output comes out to be. ये F puts को मैं हटा देता हूँ, एक ही आउटपुट आए तो. Now if I enter, yes, so see what is happening here. I gave a input as Aditya Goenka, but F gets में मतलब my str में सिर्फ Aditya space GOE stored हुआ है. So why is that? Because I gave 10. So 10 होने से कितना हो जाएगा? ADITYA space GO, right? And last वाला किसके लिए हो जाएगा? Okay? ये 50 का मीनिंग है कि इट इज द इंटायर लेंथ ऑफ द एरे. यहाँ 50 डाल सकते हैं. हाँ, सर अगर यूजर 50 हो जाएगा तो वो गार्बेज वैल्यू में चला जाएगा, कुछ कैरेक्टर्स मिस हो जाएगा. देन इट विल शो इट विल शो अ वियर्ड बिहेवियर. जावा वगैरह में क्या होता है, अगर ज्यादा एंटर करते हैं तो वो एरर दिखा देता है, रन टाइम एरर. बट सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इट विल नॉट शो एन एरर बट इट विल प्रिंट some garbage values, और एक्स्ट्रा जो तुम डाल रहे हो वो कहीं और मेमोरी में स्टोर हो गया, which becomes garbage value for some other situation. अच्छा, one more thing, अगर मैं यहाँ पे my str 4 लिखूं तो आउटपुट क्या आएगा? एज यूजुअल सो y 0 1 2, तो उसमें वो एरे की तरह बिहेव करेगा एज अ नॉर्मल एरे. ओके,